تو سوچو آپ لوگ ایک ایسی جیل میں ہو جہاں سے نکل پانا تو مشکل، وہاں سے نکلنے کے بارے میں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ہر طرف موت کا سایہ ہے اور ہر پل ایک نیا امتحان، اس جیل میں قیدیوں کو 2 سال پیدل سفر کروا کر لایا جاتا ہے، جہاں پر اگر یہ لوگ پہنچ بھی گئے تو ان کی قسمت، ورنہ راستے میں ہی بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر پہنچ گئے اگر وہ راستے میں ہی مر جاتے تو یہ ان کا گڈ لک ہوتا۔ ایسے ہی آج کی جو مووی میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں اس کا نام ہے ایز فار ایز مائی فیٹ ول کیری می۔ یہ مووی آج سے میں نے بہت ٹائم پہلے ایکسپلین کی تھی تو سوچا آپ کو دوبارہ سے دکھا دی جائے۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا، اور اب بنا کچھ دیری کیے کرتے ہیں مووی کو سٹارٹ۔ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جس کی چاروں طرف پر برف کے بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور اس آدمی کو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اکیلے طے کرنا تھا۔ یہاں اس آدمی کو ایک مرا ہوا سیل ملتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنا کھانا بناتا ہے اور اپنا پاؤں اس کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی کھال کے ساتھ اپنے زخم کی پٹی بھی کرتا ہے تاکہ وہ اپنا آگے کا سفر آسانی سے طے کر سکے۔ اس آدمی کا نام کلیمیکس ہوتا ہے۔ خیر یہاں سے سین کٹ کر کے ہمیں 1945 کا زمانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کلیمیکس ایک جرمن سولجر تھا، اور جنگ کے دوران کلیمیکس اور اس کے ساتھیوں کو رشین سولجرز نے پکڑ لیا ہے، اور اب وہ ان سبھی کو اپنا قیدی بنا کر رکھیں گے۔ ان سبھی سولجرز کو 25 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جو کہ انہیں 10,000 کلومیٹر دور برفانی علاقے میں گزارنی تھی۔ یہ ایک جیل تھی جس کی چاروں طرف بہت زیادہ برف تھی، اور یہاں لائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس جیل کی کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن یہ دنیا کی سب سے سیکیور جیلز میں سے ایک مانی جاتی تھی، کیونکہ یہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ 10,000 کلومیٹر کا سفر پیدل کرنا، وہ بھی کھانے پینے اور ضرورت کے سامان کے بغیر، کسی کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی یہاں کے سبھی قیدی جانتے تھے کہ اس جیل سے باہر نکلنا موت کو دعوت دینا ہے، اسی لیے یہ سب یہاں کام کرنے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں۔ ویسے تو کلیمیکس اور اس کے ساتھیوں کو 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، لیکن انہیں آدھا سفر ٹرین پر کروایا جاتا ہے، جس کے بعد ریلوے لائن ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں پیدل سفر کروایا جاتا ہے۔ اتنے میں انہیں کھانے کو بھی بہت کم دیا جاتا ہے، اور سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ کافی لوگ بھوک اور سردی کی وجہ سے رستے میں مرتے جاتے ہیں۔ فائنلی تقریباً 1.5 سے 2 سال چلنے کے بعد یہ اپنی جیل میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں مائلز میں پہلے سے بھی جرمن قیدی بہت زیادہ تھے، اور اب یہاں کلیمیکس اور اس کے ساتھی بھی کام کریں گے۔ یہاں بہت سے سالوں کام کرنے کے بعد اور رشین سولجر سے ٹارچر ہونے کے بعد کوئی بھی قیدی یہاں سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی یہاں سے بھاگ کر نکلنا چاہتے تھے۔ لیکن کلیمیکس کو کہیں نہ کہیں یہ یقین ضرور تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی یہاں سے ضرور نکلے گا۔ اس کے پاس یہاں سے بھاگنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی، اس کی وائف اور اس کی بیٹی۔ ایک دن کلیمیکس کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ یہاں سے کوئلہ لے جانے والی ویگن کے اندر چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد کلیمیکس بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی سٹی میں لوٹ جائے گا اور جلد ہی اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو ضرور ملے گا۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اچانک ویگن رک جاتی ہے، اور اس کے سامنے آ جاتا ہے ایک رشین سولجر۔ اس کے بعد کلیمیکس کو ایک اوپن ایئر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ویسے ہی سردی بہت زیادہ تھی، لیکن رات میں ہونے والی بارش کی وجہ سے کلیمیکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ صبح یہاں وارڈن آتا ہے اور اسے اس سیل سے نکالتا ہے، لیکن وارڈن کلیمیکس پر کوئی ٹارچر نہیں کرتا، بس اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ سکون کا سانس لینے کے بعد کلیمیکس جب مائن کے اندر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وارڈن نے کیوں کہا تھا کہ تمہارے ساتھی تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جیل میں سبھی قیدی اپنے ہتھیار لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ کلیمیکس کے بھاگنے کی وجہ سے وارڈن نے ان سبھی کا کھانا 5 دن کے لیے بند کر دیا تھا۔ بیچارے کلیمیکس کو ان سبھی کی مار کھانی پڑتی ہے، لیکن مار کھانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے جو اس کا علاج کرتا ہے۔ کلیمیکس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ پلیز میری وائف کے لیے ایک لیٹر لکھ دو، لیکن ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی بھی لیٹر باہر نہیں جا سکتا۔ پھر ڈاکٹر کلیمیکس کو بتاتا ہے کہ یہاں کی جیل کے چاروں طرف کوئلے کی بڑی بڑی کانیں ہیں، جن میں سے 24 گھنٹے کاربن نکلتا ہے، جو ہماری باڈی کے لیے بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ زہر آہستہ آہستہ ہماری موت کا سبب بن رہا ہے۔ ڈاکٹر کلیمیکس کو اپنی کہانی بتا کر کہتا ہے کہ وہ بھی ایک جرمن سولجر تھا، اور وہ بھی یہاں ایک قیدی بن کر آیا تھا۔ میں نے بھی یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا، جس کے بعد میں نے بھی اپنی اس لائف کو ایکسپٹ کر لیا۔ لیکن کلیمیکس کا یہاں سے بھاگنے کا جذبہ دیکھ کر
डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर क्लाइमैक्स को एक कोट, खाने का कुछ सामान और कुछ गोलियां देता है जो जरूरत के वक्त इसके काम आ सकती थी। उसके साथ साथ डॉक्टर ने इसे एक कंपास भी दी थी और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया था। अब रात हो जाती है और क्लाइमैक्स यहाँ से डॉक्टर के बताए हुए रास्ते से यहाँ से निकल जाता है। क्लाइमैक्स को ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ से निकलने के लिए उसे 10,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। खैर क्लाइमैक्स अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपना सफर शुरू कर देता है। अब ये 10,000 किलोमीटर का सफर खाने पीने के बगैर और जरूरत के सामान के बगैर कर पाएगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। खैर क्लाइमैक्स के भागने की बात जब वार्डन को पता चलती है तो वो डॉक्टर से पूछने आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर ने पहले से ही सुसाइड कर ली थी। अब गुस्से में वार्डन कैदियों से जाके पता करता है लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। अब देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं और वार्डन की टीम आसपास के 100 किलोमीटर का इलाका छान मारती है लेकिन ये क्लाइमैक्स को नहीं ढूंढ पाते। रिसर्च टीम वार्डन से कहती है कि हमें लगता है कि क्लाइमैक्स मर चुका होगा, लेकिन वार्डन ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि क्लाइमैक्स एक बहुत मजबूत इंसान है, वो इतनी जल्दी हार मानने या मरने वाला नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लाइमैक्स को भागे हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा थक चुका है और उसके पास जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। जेल से तो वो बहुत ज्यादा दूर आ गया है लेकिन यहाँ सर्दी की वजह से सरवाइव करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि वो अगला कदम भी उठा सके। अभी वो थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटता है तो उसे एक सील नजर आती है जिसे देखकर वो अपना पिस्टल निकाल लेता है। वो इस सील का शिकार करना चाहता था लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सही से निशाना लगा पाए। उसका निशाना चूक जाता है और सील यहाँ से पानी में भागने लगता है। क्लाइमैक्स को अब जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी और वो इस उम्मीद को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ क्लाइमैक्स का पाँव बर्फ की वजह से फिसल जाता है और ये ठंडे पानी में जाकर गिर जाता है जिसकी वजह से इसके पाँव में बहुत गहरी चोट भी आ गई थी। शदीद दर्द होने के बावजूद क्लाइमैक्स इसके पीछे भागता है और इसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब क्लाइमैक्स के खाने का मसला तो हल हो चुका था लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं है। वो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। यहाँ उसने जो सील पकड़ी थी उससे क्लाइमैक्स के खाने का कई दिनों का इंतजाम तो हो जाता है। साथ ही क्लाइमैक्स ने उसकी खाल से अपनी पट्टी भी कर ली थी और ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है। इस सील की मदद से उसे आगे बढ़ने के लिए काफी ताकत मिल गई थी। क्लाइमैक्स अब हिम्मत से काफी आगे बढ़ता रहा। आगे जाके उसे एक छोटा सा दरख्त दिखाई देता है। इस दरख्त को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ऐसे जैसे उसे दरख्त नहीं बल्कि सोना मिल गया हो। असल में ऐसी बर्फानी जगह में एक दरख्त का मिलना एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर था और इस बात का ये साफ साफ सबूत था कि ये बर्फानी इलाका जल्द ही खत्म होने वाला है और आगे जंगल शुरू होने वाला है जहाँ जिंदा रहने की काफी उम्मीद बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा हिम्मत करके वो और ज्यादा आगे चलता है और फाइनली उसे जंगल मिल जाता है। अब वो जंगल में आके बहुत ज्यादा खुश था। रात को उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और काफी दिनों बाद आराम से नींद पूरी करता है। लेकिन इंसान के लिए हमेशा आसानी हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सुबह यहाँ बहुत तेज तूफान आता है जिसकी वजह से एक दरख्त टूटकर इसके ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से क्लाइमैक्स बेहोश हो जाता है। अब क्लाइमैक्स की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी। शाम को यहाँ से कुछ शिकारी गुजरते हैं जिनकी नजर क्लाइमैक्स पर पड़ जाती है और ये इसे रेस्क्यू कर लेते हैं। अब सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि 2 साल गुजर चुके हैं और क्लाइमैक्स का सफर अभी भी जारी है। जिन 2 आदमियों ने इसे रेस्क्यू किया था उन्हीं के साथ ये अभी भी रहता है। जिस दौरान ये अपना सफर तय कर रहे थे दरमियान में एक दरिया आ जाता है। इनकी किस्मत बुरी चल रही थी। दरिया पार करते हुए दरिया में भी तूफान आ जाता है। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि इनसे अपनी बोट काबू नहीं हो रही थी और इनमें से एक आदमी पानी में गिर जाता है। क्लाइमैक्स अपनी जान पे खेलते हुए इस आदमी को बचाने के लिए दरिया में कूद जाता है। वो इस आदमी को बचा तो लेता है लेकिन इसी दौरान इनका तीसरा साथी वहाँ से इनका सामान और बोट लेकर भाग जाता है क्योंकि इससे लगता है कि वो दोनों इतने ज्यादा तूफान में मारे जाएंगे और अगर मैंने इनका इंतजार किया तो मैं भी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। खैर क्लाइमैक्स और उसका साथी जब वहाँ पहुँचते हैं तो इसका साथी अपने भागे हुए साथी को मार देता है लेकिन जिसकी जान क्लाइमैक्स ने बचाई थी उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। उसने अपने सोने को बचाने के लिए क्लाइमैक्स को भी मारने की कोशिश की जिसकी वजह से क्लाइमैक्स बर्फ में जा गिरा और गिरने की वजह से दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो खुद को बेड़ियों से गिरा हुआ पाता है इसलिए वो जल्दी से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन उसकी ये कोशिश
नाकाम रही क्योंकि एक भेड़िए ने उसके पाँव पर काट लिया था। इससे पहले कि वो भेड़िया इसे नीचे खींचकर मार देता, यहाँ के एक शख्स ने गोलियां चलाकर सभी भेड़ियों को भगा दिया था और अच्छी किस्मत की वजह से क्लाइमैक्स को दोबारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब वो आदमी क्लाइमैक्स को अपने गाँव ले जाता है, वहाँ जाकर वो इसका अच्छे से ख्याल रखता है और इसको खाना देता है। यहाँ क्लाइमैक्स को बहुत आराम मिलता है और वो पहले की तरह सेहतयाब हो गया था। लेकिन क्लाइमैक्स की मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसे इस बात का पता चलता है कि वार्डन ने उसके वांटेड पोस्टर पूरी दुनिया में फैला दिए हैं और अब किसी भी वक्त उसे कोई भी पकड़ सकता है। इसलिए जल्दी में अब उसे यहाँ से भी निकलना पड़ता है। वो अपना सफर दोबारा से शुरू करता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे जरूरत का सारा सामान देते हैं, कुछ कपड़े और एक डॉग भी देते हैं जो कि थोड़ी देर तक इसके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब वो अपना सफर शुरू कर देता है और फाइनली 1 साल बाद वो इस बर्फानी इलाके से निकल जाता है। वहाँ भागते हुए इसका डॉग इसे एक फैक्ट्री में ले जाता है। यहाँ पर लोग लकड़ियाँ काटने का काम करते थे। अब खाने का वक्त था, ये लोग क्लाइमैक्स को खाना देते हैं, जहाँ ये पेट भरकर खाना खाता है। अब इस फैक्ट्री का ऑनर इसे बताता है कि हमारी वैन तुम्हें अगले शहर तक ले जा सकती है, इसलिए खुशी खुशी वो ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऑनर ने उस पे ये मेहरबानी क्यों की थी। असल में वो क्लाइमैक्स के वांटेड पोस्टर देख चुका था। उसने एक प्लान के तहत क्लाइमैक्स को अपनी ट्रेन में बिठा दिया था और वार्डन को खबर कर दी थी। क्लाइमैक्स के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही वार्डन और उसकी टीम क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे थे, इससे पहले कि इसे दोबारा से पकड़ लिया जाए। क्लाइमैक्स यहाँ से भागने लगता है। अब इससे पहले कि वार्डन और इसके साथी इसे पकड़ लें, यहाँ इसका डॉग इसकी मदद करता है। वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स को भागने का मौका मिल जाता है। ये अब ट्रेन के ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से चलती हुई ट्रेन के ऊपर छलांग लगा के एक दफा फिर खुद को बचा लेता है। ऐसे ही उसे कई और महीने गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि क्लाइमैक्स की हालत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब वो बहुत ज्यादा भूखा है। वो एक मार्केट से गुजरता है लेकिन कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं। तब एक लड़का आके उसकी पॉकेट में एक ब्रेड का पीस डाल जाता है। असल में वहाँ खड़ी 2 औरतें उसे देखकर ये समझ चुकी थी कि वो भूखा है और उसके पास पैसे भी नहीं, और उन्होंने ही इस बच्चे को क्लाइमैक्स को ये पीस देने को कहा था, जिसे खाकर क्लाइमैक्स को थोड़ी सी एनर्जी मिली। उसके बाद ये एक चर्च में जाता है। उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है जो कि एक जोइश था और जर्मन्स को भी पसंद नहीं करता था। इसके बावजूद भी वो क्लाइमैक्स की मदद करना चाहता था। क्लाइमैक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो आदमी इसे अपने घर ले आता है। क्लाइमैक्स यहाँ आकर अपनी हालत दुरुस्त करता है। उसके बाद ये आदमी क्लाइमैक्स को कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। क्लाइमैक्स हाँ में सर हिलाता है और वो आदमी यहाँ से चला जाता है। वो आदमी जब घर वापस आता है तो क्लाइमैक्स उसे कहीं नजर नहीं आता। उसने जल्दी से जाके चर्च में देखा और क्लाइमैक्स उसे वहाँ मिल जाता है। वो आदमी क्लाइमैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि तुमने भी मेरे वांटेड पोस्टर देख लिए होंगे। पर वो आदमी कोई सवाल जवाब नहीं करता और उसे एक पासपोर्ट देता है जिसके ऊपर क्लाइमैक्स जैसे आदमी की ही तस्वीर लगी हुई थी। क्लाइमैक्स अभी भी ये बात सोच रहा था कि ये आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा है। खैर वो उस आदमी का शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकल जाता है। अब वो अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब था। उसका सफर खत्म होने वाला था। वहाँ से वो एक वैन लेता है जो उसका काफी ज्यादा सफर तय कर देती है। अब उसे रशिया और जर्मन के बॉर्डर पर जाना था, लेकिन आगे सड़क खराब होने की वजह से क्लाइमैक्स को पैदल चलना पड़ा। यहाँ बॉर्डर पर जाकर क्लाइमैक्स अपना पासपोर्ट इंतजामिया को दिखाता है। यहाँ उसे बस इसी चीज का खौफ था कि वो आदमी से पहचान न ले, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता और वो इसे जाने देता है। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसके सामने वही वार्डन था। क्लाइमैक्स अब रशिया की हदूद से बाहर निकल चुका था और अब ना ही वो रशियन कैदी था, लेकिन फिर भी वार्डन के सामने से गुजरने के लिए घबरा रहा था। उसे वो सारी मुश्किलात याद आ रही थी जो उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए झेली थी। बहुत ज्यादा हिम्मत करके वो वार्डन के सामने से गुजर जाता है। वार्डन बस उसे ये कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ 2 सोल्जर्स के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और ये लड़ाई तुम जीत गए, जाओ अब तुम आजाद हो। अब ये सुनकर क्लाइमैक्स के दिल से सारे डर निकल गए
اور اب فائنلی وہ اپنے ملک جرمنی واپس آ گیا۔ سین کٹ ہوتا ہے اور اب چرچ میں بیٹھی ہوئی اس کی وائف اور اس کی بیٹی دکھائی جاتی ہے، جن سے ملنے کے لیے کلیمیکس چرچ کے اندر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ کلیمیکس نے اپنی بچی کو آواز نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے ڈیڈ ہی آئے ہوں گے، پھر بھاگ کر وہ اپنے ڈیڈ کو گلے لگا لیتی ہے۔ کلیمیکس کی وائف بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ کلیمیکس بھی بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس نے 7.5 سال کا سفر طے کر کے اپنی فیملی کو حاصل کر لیا تھا۔ یہاں آ کر یہ مووی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، لیکن یہیں پر اس سچی کہانی کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ ہوپ سو آپ سبھی کو مووی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا کہ آپ کو مووی کیسی لگی، اور سبسکرائب بھی لازمی سے کر دینا، ہمیں آپ کے سپورٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔